Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In the today's class, we have another topic that is your petty cash book. In the last class, we have done the main contents of the petty cash book and all the theoretical background. But in today's class, we will solve the petty cash book. So I'm requesting all my students to open your manuals and open the sheets of petty cash book which is already given in your manuals. So what you have to do, you have to solve just to solve the question with me in the class as I am explaining you, and you can see the format it's already given in your manual. Clear? So let's proceed. In the yesterday's class, I have given you the description about your theory and the structure. Okay. So let's proceed. We have done why petty cash book is a cash ledger. We have done why we need the cash book or petty cash book sort of. Then we have done that petty cash book is only related with the cash transactions. We have also done the differences between the cash book and petty cash book. Then we have two types of petty cash book, the impressed cash book and the columnar cash book. Then we have the uses of petty cash book, that why we need to create the petty cash book for our day-to-day petty expenses. Then yes, this is the most important, the structure of the petty cash book, which I was discussing. I want to discuss this in detail. Okay, so now first of all, I would like to mention that we will record over here. mm, we will record. Yes, we will record. Wait for a while. Is my voice is clear to everyone? Yes. I will start the question in this way. The first of all, we have this. What is this name of the firm? Is Chonasia or something? Chaucia traders something. Okay, establish a petty cash fund, impressed cash system. Okay, impressed cash system we are preparing. आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन से भी impressed petty cash book ही फॉर्म करने को आती है. The following is the summary of your cash transaction for the month of November 2005. Now, what you people have to do first down, which is already. Yes. Wait for a while. Your first balance brought down is petty cash fund 4,000, which is already given in the question. Now, what you have to do, you have to prepare the format for the petty cash fund with your and you can say here. Okay. I don't know why it is appearing. Hope so it is clear to you. This is your balance brought down. Okay guys, so first of all you would like to mention your cash receipts. आप अपने लेफ्ट हैंड साइड का जो कैश रिसिप्ट है उसमें 4,000 मेंशन करेंगे. डेट आपके पास होगी 1 November. At the top you will write the year 2005, and then in the particulars you will write cash. Okay, so this is your balance brought down where you will. This is your balance brought down where you will write your given cash as a petty cash fund. Now these are the expenses which is already given in the question. What are those expenses? Postage stamp, telegram, donations, auto rickshaw, writing ribbons registers, lunch, Tonga fare. This is Tonga fare. Then revenue stamp, then railway tickets, ink and pencils, newspapers, and then what you have to do, you have to write it down first of all the postage paid for postage stamp 250. आपने 250 की amount pay करिए for your postage expense. You will write your expense name in the particulars. Okay, then wow, this is your vouchers number which is given.
then you will write the amount in total, and then you will write in the first in the column which is related to postage and expense. This is the postage and expense column. Okay, so you have to write it down the amount of postage expense first in the total column, and then you have to write it down the amount of postage and expense in the respective column which you have prepared for your expenses. ठीक है, सबसे पहले आपने अमाउंट को टोटल के कॉलम में लिखना है और फिर आपने जो अपने एक्सपेंसेस कॉलम बनाए हैं उसमें आपने ठीक है. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव अनदर ट्रांजेक्शन. वी हैव 120. What I will do, I will do the same step. I will write it down the telegram over here, then amount will be in the total, and then telegram is also posted in telegram the same column, so that's why I will here. Then we have paid donation amount 210. Okay, now what is the amount for donation? They have the amount is donations will be in your particulars. First, you will write in the total column. Then you have to find out which one is your बुक दोनों का ऑप्शन होता है एग्जाम में. ज़्यादातर चांसेस होते हैं आपकी कैश बुक आने के और पैटी कैश बुक बहुत कम आती है. ठीक है, बट अगेन यू पीपल हैव टू प्रिपेयर फॉर इट. इसका फॉर्मेट भी आप लोग को समझ में आ गया है कि सबसे पहले आपने पर्टिकुलर्स में अपने एक्सपेंसेस के नेम लिखने हैं. ठीक है, जो भी अमाउंट आपके एक्सपेंसेस की होगी वो आप टोटल के कॉलम में भी लिखेंगे और फिर उसके रिस्पेक्टिव एक्सपेंस के कॉलम में भी लिखेंगे. ठीक है, ऑटो रिक्शा फेयर इज 360, हमने उसको कन्वेंस के अकाउंट में भी लिख दिया है. सबसे पहले कन्वेंस का कॉलम बना हुआ है उसमें भी लिखा हुआ है और टोटल के कॉलम में भी लिखा हुआ है. ठीक है, देन वी हैव टाइपिंग रिबन एंड रजिस्टर्स. ठीक है, जो भी आपको रिबन्स और रजिस्टर्स चाहिए थे, देखिए सारे पेटी एक्सपेंसेस हैं. नहीं, टी कॉफी भी तो है. अच्छा जी, टी एंड स्नैक्स जिसकी अमाउंट आपके पास आ रही है 140 टोटल में लिखेंगे, एंड देन इंटरटेनमेंट में हमने उसको टी और कॉफी को स्नैक्स को लिखा हुआ है. दिस इज योर 140. अच्छा, मैंने अभी आप लोगों को ये बताया है कि आपका कोई भी कॉलम, अगर सपोज आपने उसका कॉलम नहीं बनाया हुआ और आपके पास वो एक्सपेंस मौजूद है, तो आपका ये जो लास्ट कॉलम है बेटा, ये मिसलिनियस वाला, ये मिसलिनियस के कॉलम में आप कोई भी एक्सपेंस एंटर कर सकते हैं. ठीक है, सो सपोज आपका कोई एक्सपेंस मौजूद है, उसका कॉलम नहीं बनाया हुआ, उसको मिसलिनियस में लिख दीजिए, आपके आंसर में कोई गलती नहीं आएगी. ओके, then we have typing ribbons and registers. टोटल की अमाउंट में आपने लिख देना है 780 के आपने रजिस्टर्स लिए. स्टेशनरी में आप उसको मेंशन कर दें. देन वी हैव लंच. लंच आपने किया 280 रुपीज का. वाओ, सो वेरी चीप लंच. ठीक है भाई, अच्छी बात है, वी एक्सपेंस लेस. 280 का अमाउंट का आपका लंच हुआ है. आपने उसको किस कॉलम में लिखा है बेटे? एंटरटेनमेंट में. देन वी हैव टोंगा फेयर, अगेन कन्वेंस में जाएगा. 40 रुपीज टोटल में आए एंड 40 रुपीज कन्वेंस में. देन वी हैव रेवेन्यू स्टैम्प्स. 200 will be in your total column, then again will be in your revenue, postage and expenses. ठीक है, the another one is your railway tickets. रेलवे टिकट्स डेफिनेटली जाने चाहिए. आपके अमाउंट कितनी है जनाब? 480 की, एंड इट विल बी रिकॉर्डिंग इन योर ट्रेवलिंग. ठीक है, वरना आप कन्वेंस और ट्रेवलिंग का एक ही कॉलम बना सकते हैं, यानी सेम एक्सपेंस का रखिएगा. आपने ट्रेवलिंग है ना, कन्वेंस और ट्रेवलिंग को एक ही कॉलम में एक साथ, जैसे इन्होंने यहाँ पे एंड लगा के दो हेडिंग्स लिखी हैं, आप लोग भी एंड के साथ दो हेडिंग्स मेंशन कर सकते हैं. कन्वेंस एंड ट्रेवलिंग यू कैन राइट इन द सेम कॉलम. Then we have ink and pencils. Okay, this is your amount of 90 rupees in the total column. Again, the stationery column we have, we will write 90 rupees. Then we have ruler, pen, papers, and dinner. Ruler papers will be of 360. You are recording in total column and then in the stationery side. In the last we have the dinner. Dinner हम किस में रिकॉर्ड करते हैं? entertainment में. ठीक है, टोटल अमाउंट 620. डिनर आपने एक्सपेंसिव किया है, लंच आपने सस्ता किया था. ठीक है, इंटरटेनमेंट में आपने लिख दिया 620. दिस इज द जस्ट द रिकॉर्डिंग. अब इसकी क्लोजिंग कैसे करनी है बेटे, वो आपके पास मेन कॉन्सेप्ट है. क्लोजिंग करने के लिए सुनिएगा कि सबसे पहले जितने भी मैंने ये एक्सपेंसेस किए हैं, सारे एक्सपेंसेस का टोटल मेरा बना 3930. ठीक है, प्लीज काइंडली इसको खुद भी मेरे साथ टोटल कीजिएगा. यूज योर कैलकुलेटर्स फॉर द टोटलिंग.
the totaling of all the columns of the expenses is 3930. फिर आपने क्या करना है, ये तो आपने इसकी वर्टिकल टोटलिंग करी है ना, ठीक है, फिर आपने इन सब का टोटल भी लिखना है यहाँ पे, ईच कॉलम टोटल 360 plus 40 is your 400. Clear? Then 780, 90 and 360 is your 1230. ये आपका इनका भी वर्टिकल कॉलम, इनकी भी वर्टिकल टोटलिंग कीजिएगा, सबकी वर्टिकल टोटलिंग होगी. Clear? This is your vertical totaling. यहाँ पे तो एक एक है. मैं आपके सामने ये जो हाईलाइटर यूज कर रही हूँ, देखें इसको मैंने वर्टिकली मूव किया है. आपने जितने भी नेचर ऑफ एक्सपेंसेस यहाँ पे गिवन है, जो आपने एक्सपेंसेस किए हुए हैं, आपने उन सब की वर्टिकल टोटलिंग करनी है. 250 प्लस 120, देन 200, 570, देन वी हैव 480, then 140, 280 and 620 is again your 1040. Last one you have 210. What you people have done, in after recording all the expenses, you people just do the vertical calculations of all the columns. So, number one your total column, and then your all expenses column. ठीक है, जब आपने सारे expenses के column का total किया था बेटा, आया था 3930. अब आपने इन सारों का जो वर्टिकल कैलकुलेशंस निकाली, तो इनकी हॉरिजॉन्टल भी निकालिए. ठीक है, हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन कीजिए. कैसे करेंगे? 400, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ. वेट, इस जगह लिखती हूँ ताकि क्लियर हो जाए. हमारे पास, आप लिखिएगा अपने पास कैलकुलेटर्स में, 400, देन प्लस 1230, देन प्लस 570, then plus 480, yes, and then plus 1040, then plus 210, sorry 210. You have to total this all columns. आपका आंसर होना चाहिए 3930. ठीक है, आपका ये आंसर होना चाहिए 3930. जो आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जब आपने इनको हॉरिजॉन्टल टोटल किया तब भी आंसर इसका 3930 होना चाहिए, और जब आपने इनको वर्टिकल कैलकुलेट किया तब भी आपका आंसर 3930 ही होना चाहिए. क्लियर? मेरे पास क्या होता है, जो आप लोगों के पास जब आपने वर्टिकल कैलकुलेशंस करी 3930 आंसर आया, फिर आपने हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशंस करी, वो भी आपके आंसर आया 3930. जो आपको टोटल कैश दिया गया था पेटी कैश एक्सपेंसेस करने के लिए, कि आप इस अमाउंट में से पेटी कैश एक्सपेंसेस का खर्चा करेंगे, वो अमाउंट है बेटे आप लोग के पास 4000. ठीक है, अब आपने 4000 में से 3930 को माइनस करना है. ठीक है, ये आपके पास वर्किंग है जो स्क्रीन पे नजर आ रही है. 4000 माइनस 3930, द अमाउंट 70,000 विल बी योर बैलेंस CD. ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हम बैलेंस सीडी के साथ हमेशा जो करंट मंथ होता है उसकी क्लोजिंग की डेट लिखते हैं. दैट विल बी योर November 30. Clear? So November 30 will be the closing date of this month. November 30 balance CD is your 70,000. Then आपने क्या करना है, सिंपल आप लोगों ने क्लोजिंग करनी है विद द बिगेस्ट अमाउंट. 4000 और 3930 में से बिगेस्ट अमाउंट कौन सी है? डेफिनेटली 4000 है. 4000 से आपने दोनों साइड्स की क्लोजिंग करनी है, लाइक दिस वन. जिस लाइन में आपने रिसिप्ट साइड्स पे क्लोजिंग करेंगे, सेम लाइन में आपने टोटल की अमाउंट में क्लोजिंग करनी है. ये बात याद रखिएगा. The closing should be in the receipt side, means in the receipt column and in the total column. ठीक है, ये आपकी क्लोजिंग होगी, क्योंकि टोटल के कॉलम में आप ये शो कर रहे हैं कि 3930 का आपका एक्सपेंस हुआ, 70 रुपीज आपके रिमेनिंग है, जो कि नेक्स्ट मंथ के ब्रॉड डाउन बन जाएंगे. अगर आप इसके बाद दिसंबर की पैटी कैश बुक बनाएंगे, तो जो आपके पास 70 रुपीज बचे हैं वो आपके पास दिसंबर का ब्रॉड डाउन होगा, और फिर आप अपने कैशियर से कुछ और अमाउंट भी लेंगे. बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह जो अभी मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था. देखें इस तरह फिर आपके पास 70 रुपीज यहाँ पे ब्रॉड डाउन बन जाएंगे, लाइक दिस. नवंबर लिखेंगे आप, नवंबर सॉरी December 1 ब्रॉड डाउन आएगा आपका 70 रुपीज, और फिर आपको दिसंबर के कोई भी पैसे मिल जाएंगे. December 1 में 70 रुपीज ब्रॉड डाउन आया, और फिर करंट पैसे मिलेंगे आपको दिसंबर के मंथ के पेटी कैश के. हो सकता है 4000 दोबारा मिल जाए. तो आपके पास आपने क्लोज कर दिया बैलेंस सीडी विद 70, क्लोजिंग ऑफ द कैश रिसिप्ट्स, एंड द टोटल कॉलम इज 4000. देन द लास्ट स्टेप इज योर December 1 ब्रॉड डाउन 70. जिस अमाउंट को आप सीडी करते हैं, सेम अमाउंट को आप बीडी करते हैं. क्लोजिंग के साथ बैलेंस सीडी के साथ जो मंथ की आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं उसकी लास्ट
लास्ट की डेट आती है November 30, और ब्रॉड डाउन के बाद में जो आती है उसके नेक्स्ट वाले मंथ की फर्स्ट डेट आती है। नवंबर के बाद आता है दिसंबर, और दिसंबर की फर्स्ट की डेट। ठीक है, सो ये आपके पास आ गई बैलेंस सी डी, सॉरी बैलेंस बीडी। सीडी की अमाउंट आपने टोटल के कॉलम में लिखनी है, और बीडी की जो अमाउंट है वो आपने कैश रिसिप्ट्स में लिखनी है, क्योंकि वो नेक्स्ट मंथ में यूज होगी। ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। मीन्स यू शुड नॉट मेक एनी मिस्टेक इन रिकॉर्डिंग। जो इस पूरे क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जिसपे मैं अभी हाईलाइटर यूज कर रही हूँ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वेयर यू नीड टू क्लोज ऑफ योर पैटी कैश बुक। ठीक है, आप एक पेटी कैश बुक को क्लोज करते वक्त बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपने वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल टोटलिंग के बाद बैलेंस सीडी निकालना है, और बैलेंस सीडी आने के बाद जो टोटलिंग होगी 4000 की, वो कैश रिसिप्ट्स के कॉलम में और टोटल के कॉलम में जाएगी। ठीक है, एंड देन बैलेंस ब्रॉड डाउन जब लिखेंगे तो वो कैश रिसिप्ट्स के नीचे लिखिएगा जहां आपने क्लोज किया है। दिस इज ऑल फॉर टुडे फॉर द पैटी कैश बुक। यहाँ इन्होंने एक आपको बॉक्स दिया हुआ है, इसको मैं अच्छे से गो थ्रू कर देती हूँ आप लोग के लिए। दीज टोटल्स आर पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ योर रिस्पेक्टिव अकाउंट इन द जनरल लेजर। क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस हैं ना, तो अगर आप याद करें एक्सपेंसेस के आपके पास जर्नल एंट्री क्या बनती है, ऑल योर एक्सपेंसेस विल बी डेबिट एंड योर कैश विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, तो ये आपके पास जर्नल एंट्री बनती है अपने सारे एक्सपेंसेस की, और हम फिर उसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं, मीन्स टी अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जनरल जनरल एंट्री ऑफ पैटी कैश बुक भी डिस्कस करूंगी। सो यू शुड नॉट मिस द नेक्स्ट लेक्चर। इन द टूडेज क्लास वी हैव गॉन थ्रू how we will write the petty cash book of the impress system of the cash book. These are the all expenses which is already given in the question, so you should not worry कि हम कौन कौन से क्वेश्चन expenses के कॉलम बनाएंगे। and in the required part they also mention you the name of the columns। ठीक है, required में उन्होंने आपको columns के name भी बताए हुए हैं कि आप किस किस नाम के columns बनाएंगे। suppose in the board examination वो आपको columns के name नहीं देते, तो आपने यहाँ पे खुद से देखते हुए expenses की recording करनी है। आपकी अपनी मर्जी है, आप जितने भी columns बनाएं expenses के, और एक के साथ दूसरे column को merge करके भी बना सकते हैं, as we have discussed right now। this is all for today, thank you so much। Yes, this is the main concept of your petty cash book. Thank you so much, and keep watching my videos, and like, subscribe my videos. Thank you so much. Allah Hafiz.